Assalamu alaikum students. My name is Dr. Shakib Kazmi and the course we are going to start here is 317 first year biochemistry, pharmaceutical chemistry 2B. That is basically about the theory of biochemistry. Before starting this course, I want to tell you about few things about the course. And this course is basically important for the basic biological reactions of our body, and in order to understand further pharmacology and other detailed courses in our later years of study, then we have to get the elaborated knowledge of biochemistry of human body. So this is a very basic and important course. It's significant and it has lots of significance in understanding further courses in our future. So let's start this course, and first we will go through the course detail. This course includes just the introduction of metabolism, that include metabolic fate of biomolecules, anabolism and catabolism. We will talk about in detail about anabolism and catabolism in this lecture. And then we will study about carbohydrates and lipids, protein, amino acids, bioenergetics, and these are all biomolecules, and we will study about them separately in details. Then we will talk about the regulation of metabolic process that are involved in our body, and what are the chemicals and biological molecules that are responsible uh, for these metabolic processes. These include the role of vitamins, role of mediated hormones, and secondary messenger gene expression. Gene expression is a totally different topic, and we will talk about in detail in our future lectures. जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल के हालात की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं, ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस में इतनी आसानी से जो है समझ नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह जब क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट होंगी तब हम केमिकल रिएक्शंस जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि जो है उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके. After that, we will study about clinical chemistry. This is totally a separate topic in which we will talk about the laboratory test and diagnosis and how these diagnoses can interpret the dosing and pharmacological effects of drugs. So let's talk about the books, and these are the major books. And असल जो हमें पढ़ना है वो बुक से पढ़ना है. ये दो टेक्स्ट बुक्स है जो हमें फॉलो करनी है, एक हार्पर इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री और इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री एम.एन. चटर्जी. ये दोनों टेक्स्ट बुक्स आपको इजीली अवेलेबल हैं हमारी लाइब्रेरी में, तो आप इससे जो है हम जो डिटेल पढ़ेंगे वो बुक से पढ़ेंगे, बाकी प्रेजेंटेशन से मैं आपको की पॉइंट समझा दूंगा, और इसके अलावा हम जो प्रोसेसेस वगैरह होंगे वो हम प्रेजेंटेशन से और लेक्चर से समझ लेंगे, लेकिन जो डिटेल हमें पढ़नी है वो बुक से पढ़नी है, मेनली हार्पर से. So let's start with the introduction of metabolism. आगे जितने भी टॉपिक हैं वो समझने के लिए तो ज़रूरी है कि हमें मेटाबॉलिज्म का जो आइडिया है वो हमारे दिमाग में क्लियर हो, जो बेसिक थीम है मेटाबॉलिज्म की. मेटाबॉलिज्म होता क्या है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है. जब तक ये चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी हम आगे कोई भी प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं समझ पाएंगे. तो ये इंतहाई अहम लेक्चर है, और जब हमारी इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तब मैं इस लेक्चर को रिव्यू भी कराऊंगा दोबारा से, ताकि जिनको ये समझ नहीं आ सका ऑनलाइन लेक्चर्स में उसको हम समझा देंगे डिटेल में. So let's start with just the definition of metabolism. What is metabolism? It is metabolism defined as a series of biochemical reactions take place inside our body in order to sustain life. This is just a book definition. So let's break this definition to understand completely what metabolism is. So here, why we say life? Because the requirement of sustaining life in human beings are maintaining constant internal temperature,
reproducing, growing, and all other processes. And all these processes ultimately is body's ability to utilize four essential biomolecules. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं एक लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, और प्रोसेस की मैंने कुछ एग्जांपल बताए, जैसे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, या फिर रिप्रोडक्शन हो गई, या ग्रोइंग हो गई, या फिर बहुत सारे बेइंतहा प्रोसेस होते हैं बॉडी में। हर प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूसली बॉडी में होती है। मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू होती है? चार एसेंशियल हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। और ये बायोमोलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। And all these biomolecules are responsible for life sustaining reactions and promote life. So metabolism is basically the study of how we are going to obtain these important biomolecules to sustain life. So the question is how we can get these biomolecules, and the simple answer is by food. So food is the basic source of getting all these biomolecules. But the issue here regarding food is that this food comes from living organisms like plants and animals, and these living organisms contain all these essential biomolecules but not in same configuration as our body need. तो ये इतना सिंपल नहीं होता कि हम फूड खाएं और हमें बायोमोलिक्यूल्स मिल जाए। हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो इन बायोमोलिक्यूल्स की एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में। कार्बोहाइड्रेट भी हमें स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के चाहिए, प्रोटीन भी, फैट्स भी, न्यूक्लिक एसिड भी। बट जो हमें फूड मिलता है वो प्लांट्स और एनिमल से, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। तो अब मसला ये है कि उसको अपनी हम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह लेकर आएं। So in order to get the configuration of our need, we first eat food, then we break down this food through a process called digestion. Now you can see on the screen that first we can eat food, and then by the process of simple digestion, we break down these food into smallest subunits or the components of these biomolecules. So each biomolecule have its own component. For example, the smallest subunit of carbohydrates is glucose. Glucose is the most common one. We have other smaller subunits of carbohydrate as well, but the most commonly involved in our metabolism is glucose. And the smaller subunit of proteins are amino acid, and for fats there is fatty acids, and for nucleoside these are nucleotides. So in the process of digestion, our body break down different types of biomolecules into their smallest subunits. So now we get the idea that our body needs specific configuration of these biomolecules, but how does basically breaking down these biomolecules is helpful for our body? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अभी सिर्फ इस फूड को या बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के बाद इनके सब यूनिट्स में, तो इससे हमारी बॉडी को क्या फायदा हुआ, इससे इनकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह चेंज हुई? So the key here is to recognize that in our body there is a delicate balance going on between the process of breaking down molecules, such as in the process of digestion, and then these products, and then taking these products and building them up. And in the building up process, we can customize the configuration of subunits. जैसे कि सबसे पहले जो है हमने फूड लिया, फिर उसकी डाइजेशन हुई और उसके सब यूनिट बन गए। ये जो प्रोसेस है ये ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस कहलाता है, और इसको बायोलॉजिकल टर्म में हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन हमारा मकसद था कि हमें बायोमोलिक्यूल्स चाहिए अपनी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारी बॉडी की नीड है। तो यही स्मॉलेस्ट सब यूनिट्स को जो है हम फिर दोबारा से बिल्डअप करेंगे
और बिल्डअप करके बायोमोलिक्यूल्स बनाएंगे अपने डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन के, अपने डिजायर स्पेसिफिकेशंस के। तो ये जो बिल्डअप का प्रोसेस है ये कहलाता है एनाबॉलिज्म। तो इससे आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म इज सिंपली breaking down of food, for example digestion is an example of catabolism, and anabolism is building up uh, larger molecules from smaller molecules of our desired configuration. This is anabolism. Now another important thing that we need to consider here is that the process of building a molecule, that is anabolism, requires energy. Now the question arises here is, where does the energy comes from? Okay, तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, बट जो बिल्डिंग अप का प्रोसेस होता है एनाबॉलिज्म का होता है उसके अंदर हमें एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी हमारे पास कहाँ से आती है? ये भी हमारे पास फूड से आती है। Now we will learn in detail about how we get energy from our food. अब फूड से एनर्जी किस तरह हासिल होती है हमें ये भी डिटेल में पढ़ना है। सो द एनर्जी करेंसी ऑफ अवर बॉडी इज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। एटीपी एक मॉलिक्यूल है जिससे बेसिकली जो है हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी का। फॉर एग्जांपल एनर्जी जहां पर भी एटीपी इन्वॉल्व है, जिस प्रोसेस में भी एटीपी इन्वॉल्व है वहां पे एनर्जी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी करेंसी क्यों कहा गया है? करेंसी इसलिए कहा गया है कि जैसे अगर एक बंदा है ए और उसको जो है कुछ एनर्जी ट्रांसफर करनी है बी को, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर करेगा? एटीपी की फॉर्म में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको करेंसी कहा गया है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है या कोई चीज़ बन रही है दो मॉलिक्यूल से कंबाइन होके और वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी उसको किस शक्ल में मिलेगी? उसको मिलेगी एटीपी की शक्ल में। और एटीपी होता क्या है? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा बायोमॉलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड्स के जो वो होते हैं सब यूनिट्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब उन न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो चार तरह के होते हैं बेसिकली, एडिनोसिन, गायनिन, यूरेसिल एंड थायमिन, और साइटोसिन भी होता है। पांच तरह के होते हैं। तो उनमें से एक होता है हमारा एडिनोसिन। एडिनोसिन के साथ तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं और ये हमारा जो है एनर्जी पैकेट कहलाता है या एनर्जी करेंसी कहलाता है। अब एटीपी से हमें एनर्जी किस तरह मिलती है वो भी हम पढ़ लेते हैं। In order to provide energy, ATP converts into ADP and then release one phosphate group. ADP क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा तो इस रिलीज होने में जो है एनर्जी रिलीज होती है। ये जो मैंने शो दिखाया है और ये एनर्जी का है। तो एक ATP का मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है एक फॉस्फेट आयन रिलीज करके। अब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंट अमाउंट ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है तो नंबर ऑफ एटीपी ज़्यादा होते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। कुछ केमिकल रिएक्शंस में एटीपी कम चाहिए होते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ एटीपीज कम होते हैं और हमें वो कम एनर्जी मिल जाती है। And this energy work as a fuel in all energy requiring process in our body. Just like building a process of anabolism. So in order for this process to continue non-stop in our body, ATP must be regenerated into ATP, and that is where food comes in. Now the problem is we have to regenerate ATP. अगर हम सारे ATP यूज कर लेंगे, सब ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि ATP खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे, ताकि ATP
क्वांटिटी खत्म ना हो तो हमें दोबारा रीजनरेट करना पड़ता है एटीपी। अब एटीपी रीजनरेट किस तरह होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और प्लस फॉस्फेट दोनों दोबारा मिलते हैं और एटीपी बना देते हैं। बट ये क्या प्रोसेस हो गया, ये एनाबॉलिज्म हो गया। अब इसके अंदर जो है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जब दो चीजें मिलके कोई एक चीज बनाएंगी तो उसमें लाजमी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब एटीपी के जनरेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, सेम आंसर इज फूड। तो यहाँ पर भी जो एनर्जी आएगी वो फूड से आएगी, और यहाँ पर फूड से किस तरह आएगी एनर्जी, फूड से हमें डाइजेशन के बाद सब यूनिट्स मिले थे। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिला था, और प्रोटीन से हमें अमाइनो एसिड मिला था, और फैट से हमें फैटी एसिड मिला था। ये ग्लूकोज की जो फर्दर ब्रेकडाउन होती है, सो व्हेन देयर इज अ फूड इन्वॉल्व, just remember the process of digestion. Food breakdowns into subunits like glucose, carbohydrate. So these subunits, especially glucose and fatty acid here, can essentially be used as a fuel in our body, and these subunits further break down to produce energy that's necessary to convert ATP into ATP, and then allowing the cycle to continue. ठीक है, तो ये सब यूनिट्स फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं और फिर एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वो एनर्जी कंज्यूम होती है एटीपी की फॉर्मेशन में, ताकि जो है ये साइकिल एक कंटिन्यू रहे। अब इस साइकिल के लिए भी एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टर्म है जो कि हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। This whole process of breaking down of ATP into ADP and releasing energy and then building up again ATP by ADP by utilizing energy obtained from food is known as cellular respiration। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस साइकिल को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। मैं एक दफा फिर से बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ breaking down of ATP adenosine triphosphate into ADP adenosine diphosphate plus phosphate with the release of energy, and then again formation of ATP adenosine triphosphate by the combination of ADP and phosphate, adenosine diphosphate plus phosphate, with the utilization of energy obtained from food is called cellular respiration. The whole process, the whole cycle is called as cellular respiration. So the cellular respiration is involved breaking down things further. So it also a catabolic process. How cellular respiration is a catabolic process? Because in cellular respiration we are breaking down the subunits of biomolecules, that is glucose and fatty acids and amino acids. So the further breaking down is involved in cellular respiration. So whenever there is a breaking down of any molecule, any biological molecule, then this process is comes into the category of catabolism। ठीक है, तो हम सेलुलर रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। एंड द होल प्रोसेस और cycles of catabolism और anabolism is controlled and regulated by hormones। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के और इसके अलावा एनाबॉलिज्म के, कैटाबॉलिज्म के, बॉडी के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे किससे कंट्रोल होते हैं, हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। तो हम हार्मोन्स की आगे इंशाल्लाह डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह कौन सा हार्मोन जो है वो कौन से प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वाइटामिन भी इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे, और कोएंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा सेकेंड मैसेंजर्स इन्वॉल्व होते हैं इन सारे प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करने में। अब हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है और किस तरह जो है प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनता है। इसी तरह फैट्स जो है ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड में, और किस तरह जो है ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं एनाबॉलिज्म में। दोबारा हमें कार्बोहाइड्रेट बनाना हो तो किस तरह बनेगा, दोबारा हमें प्रोटीन बनाना हो तो किस तरह बनेगा, दोबारा हमें फैट बनाना हो तो किस तरह बनेगा। और फिर इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इन सब यूनिट्स को किस तरह ब्रेक डाउन किया जाता है, किस तरह जो है ग्लूकोज जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगा,
किस तरह फैटी एसिड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये हर प्रोसेस का एक अलग अलग नाम है, हर प्रोसेस बहुत डिटेल में पढ़ना होगा हमें। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को लगेगा कि रट्टे वाली हैं, लेकिन हमारे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, और हर चीज़ बहुत आसानी से हमें याद हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू लेटर। थैंक यू, हाफिज।